Assalamu alaikum. Today we'll learn about the how to find the orthogonal trajectory in polar coordinate system. First of all, we must know that the tangent in Cartesian coordinate system is represented by dy by dx. But remember that the tangent in polar coordinate system is represented by 1 upon r dr by d theta. So remember that in a Cartesian coordinate system, the tangent is dy by dx. That is replaced for the orthogonal trajectory. We replace it by minus times dx by dy. Similarly, for the tangent in polar coordinate, first we have to find the tangent of the polar coordinate, and then we have to replace this tangent by something or whatever the tangent of the family of the orthogonal trajectory that will be described in the next steps. So first of all, steps to find the orthogonal trajectory. Step number one. Step number one is sometimes not defined in a book, but remember that कि ये स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे तो टेंजेंट आपके पास जो भी पोलर कोऑर्डिनेट का है वो एग्जैक्टली इसी तरीके से 1/r dr by d थीटा की फॉर्म के अंदर आ जाएगा. अच्छा, पोलर कोऑर्डिनेट को डिफाइन करना के हवाले से ध्यान में रखिएगा कि पोलर कोऑर्डिनेट में r जो है वो फंक्शन ऑफ थीटा के तौर पे डिफाइन होता है. तो स्टेप नंबर वन ये है कि आप यू हैव टू टेक ln ऑन बोथ साइड्स, यानी हम जो है वो ln दोनों साइड्स पर लेंगे. स्टेप नंबर टू में ये होगा कि जस्ट टेक डेरिवेटिव with respect to theta, or you can say कि you have to find the tangent of that particular coordinate system, of that particular function in the polar coordinate system. So after taking the derivative with respect to the theta, you will have 1/r dr by d theta. Then you have to replace in step number 2. I am just saying कि you have to replace 1/r dr by d theta by minus times r into d theta by dr. ठीक है, तो हमें असल में रिप्लेस करना होगा 1/r dr by d थीटा को माइनस टाइम्स r d थीटा by dr से. आफ्टर दैट रिप्लेसमेंट स्टेप नंबर 3 was same, that you have to take the integral or solve the differential equation. वो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी होगी आपको उसे सॉल्व करना होगा. रिमेंबर दैट कि क्योंकि हम टेंजेंट फाइंड कर रहे हैं, हम डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड कर रहे होंगे पहली इक्वेशन का पहली फैमिली ऑफ कर्व का, तो उसके अंदर भी हमें सबसे पहले जो है वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना होगा अगर वो एग्जिस्ट करता होगा. तो अगर एग्जिस्ट नहीं करता वो एक अलग बात है. जैसे जो अभी एग्जांपल हम कर रहे हैं उसके अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी पहली आपकी जो भी पहला कर्व गिवन होगा उसकी. So let's suppose a family of curve in a polar coordinate system is defined by r equal to 2c into cos theta. So you have to find the orthogonal trajectory of this curve that is defined in a polar coordinate system, where c is arbitrary constant. C is arbitrary constant. So starting with our first step, that you have to take the ln on both sides. For following the step number 1, when we take ln on both sides, on the left hand side you will have ln r equal to ln 2c into cos theta. Remember that the property of ln, as ln a into b is equals to ln a plus ln b. So I am describing this 2c as a, this 2c as a, and cos theta as b. So when you apply this property on the above ln 2c into cos theta, you will have ln of 2c plus ln of cos theta. Remember that कि 2 तो आपके पास कांस्टेंट है लेकिन c भी कांस्टेंट है, तो ये पूरा पार्ट जो कुछ भी है ये कांस्टेंट ही है आपके पास.
ठीक है. So on the left hand side you have ln r, and when you take the derivative with respect to theta, differentiating step number 2 is differentiate equation. Let's suppose this is equation number 1 with respect to theta. So you will have d divided by d theta of ln r equal to d divided by d theta of this whole term ln 2c plus ln cos theta. So रिमेंबर दैट कि r जो है वो आपका एक डिपेंडेंट वेरिएबल है. जिस तरह आपके पास जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो यहाँ r डिपेंडेंट वेरिएबल है. तो हमारे पास जो भी डेरिवेटिव है, जो अक्सर कन्फ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को कि डेरिवेटिव रिपीट होगा या नहीं होगा, तो r डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका डेरिवेटिव रिपीट होगा आपके पास. तो इसका डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 1/r dr by d theta, that is equals to, when you apply the derivative with respect to theta on ln 2c, it will be 0 since ln 2c is a constant, and when you apply the derivative of with respect to theta on ln cos theta, so the derivative will be 1 divided by cos theta and a derivative of cos theta again, so you will have minus sin theta. यानी जो भी ln का फंक्शन होता है, इसकी प्रॉपर्टी आपके पास फॉर्मूला कुछ इस तरह से है कि अगर आपके पास x के रिस्पेक्ट से लेट सपोज हम कह रहे हैं ln बॉक्स का आपको जो है वो डेरिवेटिव इवैल्यूएट करना है, तो इट विल बी 1 डिवाइडेड बाय बॉक्स इनटू द डेरिवेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉक्स. तो असल में क्या हो रहा है, यहाँ पर भी इसी तरीके से 1 डिवाइडेड बाय r, यानी ये बॉक्स है आपके पास, r यहाँ पे बॉक्स है, तो 1 डिवाइड बाय r और डी आर डिवाइड बाई डी थीटा ये आपके पास आ गया. इसी तरीके से ln cos थीटा के टाइम पे cos थीटा आपका डिनोमिनेटर में आया, और उसके बाद जो है वो cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा ये आपके पास आ गया. नाउ दिस इज़ द स्टेप नंबर 2. हमने जो स्टेप नंबर 2 के अंदर 1 डिवाइड बाय आर डी थीटा बाई डी आर ये हमने फाइंड कर लिया. अच्छा, यहाँ मैंने लिखा तो नहीं था टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा. जब आप ये करेंगे दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड 1 डिवाइड बाय आर डी थीटा बाय डी आर बाय डी थीटा. यानी ये ऑब्वियस है कि जब हम आप थीटा के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास यही आएगा. तो हमने क्या किया है, यहाँ पे ये चीज़ फाइंड कर ली है. 1 डिवाइड बाय आर डी आर बाय डी थीटा इक्वल्स टू, आप चाहें तो इसको यूँ लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाय आर डी आर बाय डी थीटा इज़ इक्वल्स टू माइनस टाइम्स साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा. नाउ अब हमें क्या करना होगा कि फॉर द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री हम इस पूरे पार्ट को रिप्लेस कर देंगे. यानी स्टेप नंबर 2 आपका क्या, स्टेप नंबर 2 में रिप्लेसमेंट होगी माइनस आर इंटू डी थीटा बाई डी आर से, एंड देन हम उसको इंटीग्रेट करेंगे. अच्छा, ध्यान में रखिएगा, अगर यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कोई होता तो हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट करते, जिस तरह हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एलिमिनेट किया था. नाउ द नेक्स्ट स्टेप विल बी you have to replace 1/r dr by d theta by minus times r into d theta by dr. So when you replace this whole term by minus times dr minus times r into d theta by dr, that is equals to माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा. दोनों साइड पे माइनस है, आप इसे कैंसिल कर सकते हैं. तो आपके पास टोटल टर्म जो है वो ये रह जाएगी इस तरह से कि आर डी थीटा बाई डी आर इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा. हम ये देख सकते हैं कि दिस इज़ अ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म नाउ, एंड दिस कुड बी सॉल्व बाय सिंपल taking the integral on both sides. Remember that when you replace this 1/r dr by d theta by minus times r d theta by dr, that means this becomes the differential equation of the second curve, differential equation of second family of curves. So ये सेकंड कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई. अब हमें इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है. अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन अभी यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, मे बी कि आपके पास होमोजीनियस हो, नॉन होमोजीनियस हो, या जितनी भी टाइप्स आपने पढ़ी हैं उनमें से कोई सी भी एक हो सकती है. तो बहरहाल फ़िलहाल हमारे पास ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है. हम इसको जो है वेरिएबल इसका सेपरेट करते हैं. वी कैन राइट इट एज कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू डी थीटा, यानी कॉस थीटा यहाँ डिवाइड हो रहा था, यहाँ मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, साइन थीटा मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ आके डिवाइड हो गया, और डी थीटा ऐसी रहा, और डी आर जो है वो यहाँ डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे आके डिवाइड में आ जाएगा. नाउ वी हैव टू टेक द इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स. सो टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स यू विल बी हैविंग
ln of sin theta on the left hand side for this integral, that is equals to ln of r plus c. सो ये ओवरऑल आपके पास इक्वेशन आई है सेकंड कर्व की। अच्छा, इसमें जहन में रखिएगा, या प्लस सी वैसे ज़्यादा बेटर है कि आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाली साइड पे लिखें। इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन बहरहाल कॉमन प्रैक्टिस यही है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाली साइड पे ही आप सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को लिखते हैं। और क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे थीटा है, आर जो है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हमने इसको इसी तरीके से छोड़ दिया। अच्छा, यहाँ मैंने जो इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज़ की है, इंटीग्रल का फॉर्मूला यूज़ किया है, वो कॉमन है। आप जानते हैं कि अगर डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद हो डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का, तो आपके पास आंसर आ जाता है ln ऑफ f ऑफ x प्लस सी। ठीक है, तो इसी तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं कि साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा न्यूमरेटर में मौजूद था, तो हमने जो है वो डायरेक्टली ln साइन थीटा लिख दिया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया यहाँ पर। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, सी, क्योंकि इनिशियली वहाँ फर्स्ट कर्व का भी मौजूद था, फर्स्ट कर्व का जो आर्बिट्री कांस्टेंट था वो सी था, तो हम यहाँ पे इसको के कह देते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे तो सिंपल प्रॉपर्टी ln की यूज़ हुई है, आर का डेरिवेटिव 1 न्यूमरेटर में मौजूद है, तो लिहाजा ln r आ गया आपके पास। अच्छा देखें, वैसे तो ये कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन, या आप इसमें r इवेल्यूएट करना भी चाहें तो आप इसी इक्वेशन से r डायरेक्टली इवेल्यूएट कर सकते हैं कि टेकिंग एक्सपोनेंट ऑन बोथ साइड यू कैन राइट ln r इक्वल टू ln ऑफ साइन थीटा प्लस k. So when you take exponent on both side you will have r ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक्सपोनेंट ऑफ ln साइन थीटा प्लस के। सो आप ये भी कर सकते हैं इसे कि एक्सपोनेंट को जो है वो अगर हम स्प्लिट कर लें, कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है एक्सपोनेंट ऑफ के, तो एक्सपोनेंट ऑफ ln यहाँ पे तो कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा आपके पास ऐसे ही रह जाएगा। और एक्सपोनेंट ऑफ के इज़ अनदर कांस्टेंट, सो यू कैन suppose that exponent of k is equals to a, any other arbitrary constant, so this will also be the answer of this given differential equation, given curve कि आपके पास जो है वो हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया, तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ द सेकंड कर्व आपके पास या इक्वेशन ऑफ द सेकंड कर्व ये आपके पास मिल गई। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं इसका, जिसको ज़ाहिर है मैं कंप्लीट तो नहीं कराऊंगा, आप लोग खुद ये आपका टास्क होगा कि आप उसको कंप्लीट करें। यू हैव टू फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ r इक्वल टू a इंटू 1 प्लस साइन थीटा। लेट सपोज अगर ये एक क्वेश्चन है, तो इसमें भी अगेन वही स्टेप फॉलो करेंगे कि ln आप दोनों साइड्स पर ले लेंगे, तो ln a आपके पास यहाँ आ जाएगा, और प्रॉपर्टी को भी डायरेक्टली हम अप्लाई कर रहे हैं, तो ln 1 प्लस साइन थीटा ये ऐसे आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो थोड़ा सा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, कुछ भी स्टेप शो कर डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ कि नेक्स्ट जो है वो आपके पास जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/r डी आर बाई डी थीटा आपके पास हो जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू ln a का डेरिवेटिव, क्योंकि कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, इसलिए इसका पूरा डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा डेरिवेटिव 1 डिवाइड बाई 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा डेरिवेटिव ऑफ द 1 प्लस साइन थीटा, सो यू विल हैव कॉस थीटा इन द न्यूमरेटर। सो अगेन अगर आप यहाँ पर भी देखें तो फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री आप क्या करेंगे, आप इसे रिप्लेस कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस आर डी थीटा बाई डी आर, दैट इज़ इक्वल्स टू कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन थीटा, तो ये इसके इक्वल हो गया। अगेन ये जो है वो एक वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, 1 प्लस साइन थीटा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस थीटा यहाँ डिवाइड हो जाएगा, एंड सो, तो ये जो है वो आपके पास एक अगेन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। इस वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा सेकंड ऑर्थो यानी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री आ जाएगी आपको आपके पास इस फर्स्ट कर्व की, या आप ये कह सकते हैं कि फाइनल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ द सेकंड कर्व वो आपको मिल जाएगी। ये थोड़ा सा सिंपल है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर डिटेल में देख चुके थे कि किस तरीके से हम जो है वो वर्किंग करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी जो है वो हमने वर्किंग करी। बस एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि अक्सर कन्फ्यूजन ये होती है कि अगर हम जो है वो इस स्टेप के अंदर यानी सिंपल ये वाला स्टेप फॉलो ना करें, टेकिंग एलन ऑन बोथ साइड, तो मे बी आप ये स्टेप अगर फॉलो ना करें तो आपको 1/r वाली फॉर्म तो लेकर आनी होगी, सिंस टेंजेंट इन पोलर कोऑर्डिनेट इज़ 1/r dr by d थीटा, नॉट dr by d थीटा ओनली,
ठीक है ना। अक्सर मिस्टेक ये होती है कि सिंपल डी आर बाई डी थीटा को जो है वो हम टेंजेंट सपोज कर लेते हैं और इसको रिप्लेस करा देते हैं माइनस टाइम्स डी थीटा बाई डी आर से, जिस तरह का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर था। तो जहन में रखिएगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो आपका टेंजेंट है वो डी वाई बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट होता है, जबकि टेंजेंट जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में है वो 1/r डी आर बाई डी थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो दैट्स ऑल, इस लेक्चर के अंदर इतना ही था। होपफुली कि आप जो है वो इस एग्ज़ाम्पल को कंप्लीट कर लेंगे। इसका सोल्यूशन भी जो है वो आपके पास जो बहुत सिंपल है, अगर आप इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो फिर उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको एलसीएम ब्रेक करना होगा। एलसीएम ब्रेक करके इंटीग्रेट कर दें, सिंपली आपके पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।